टाइप ऑफ एरर्स क्या होती हैं. व्हाट इज एरर? एरर मीन्स वेन एवर देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी गिवन टू यू लाइक अ पर्टिकुलर पेन, there is some actual length of that particular pain. ठीक है, but whenever we measure it with the help of some measuring instrument, we do not measure it accurately. Clear? That means the measured value and actual value has some difference. That difference is defined as error. So error is difference between actual value of the measurement and measured value of the measurement. It is impossible to measure accurately. That was Heisenberg's principle. He told that it is impossible to measure accurately. That means there will be some error in each and every calculation or each and every measurement. Clear? The type of errors which they are given in this particular chart. The first one is systematic error. Systematic error means those errors whose exact cause is known to us and there are definite methods to reduce their values. We cannot remove them completely, but we can reduce them. So all those errors whose exact cause is known to us and there are methods to reduce its value, we call them systematic errors. Now these systematic errors are again divided into 4 parts. The first part is error due to instrument. The instrument which you are using may not be perfect. Clear? The calibration, that is marking on it, may not be correct. It may not be accurate. With time there may be some wear and tear in that instrument. Clear? And also some marking may be absent. Sometimes you may not know the correct method to measure. For example, whenever you want to take any reading, we must place our eye just above it, normal to the reading. But what we do, we generally place it like this from some angle. We do not keep it exactly at the normal condition, and that's why the reading is not accurate. So there are different type of causes of that error. So we have divided that error due to instrument into mainly 2 parts. That is least count error and constant error. But some of the instruments like vernier calipers, like screw gauge, may have third type of error also, which is called zero error. अभी हम डिस्कस करेंगे उसको. Now what is least count error? Each and every instrument we can measure accurately up to a definite value. That minimum value which we can measure accurately with the help of that instrument is called its least count. So least count is that minimum value which we can measure accurately. For example, in this meter scale, 0.1 centimeter is its least count, and that we can measure accurately. But amount of this error depends on the amount of least count. Numerically, least count error is equal to least count of the instrument itself. इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था. सपोज आपके पास ये मार्क है, ये मार्क 10.1 है, ये मार्क 10.2 मैंने एनलार्ज कर दिया है. ठीक है, एंड यू हैव द पर्टिकुलर लेंथ अप टू दिस पॉइंट. आपने 0 से देखा तो 0 से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ दिख रही है. Now there may be 2 type of observations which you will take. Some of the observers may read it as 10.1, assuming that it is very near to 10.1, and some of you may measure it 10.2, but actually speaking it is neither 10.1 nor 10.2. Clear? In that case, the amount of error which may take place is equal to 10.2 minus 10.1, that is 0.1 centimeter. That is least count of that instrument. So least count error is always equal to the least count, numerical value of least count of that instrument. In meter scale, its value will be 0.1 centimeter. In case of vernier calipers like this value will be 0.01 centimeter. In case of screw gauge, it may be 0.001 centimeter. In case of this screw gauge, it may be 0.001 centimeter. So different type of instruments will have different values of least count, and so different values of least count errors. Clear हुआ? सबसे अच्छा क्या होगा कि least count error minimum हो. To minimize it, आप क्या करना चाहिए? We must use an instrument whose least count is very small. But इसमें आपको realistic approach भी देखनी होगी. What is realistic approach? For example, if you want to find height of a particular pole, then you cannot use a screw gauge or a vernier calipers. In that case, you have to use a scale, a large scale
1 meter or 2 meter long scale. In case if you want to find out distance between two cities, in that case you have to use a long tape which may be of the length equal to 100 meters or more. So there must be some realistic approach of taking the reading. Clear? तो यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा बोल के कि लीस्ट काउंट कम होना चाहिए, हर जगह ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच मैंने बताया क्या होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर वी कैन रिड्यूस इट बाय टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लीस्ट काउंट इज एज लिटिल एज पॉसिबल। द सेकंड इज कांस्टेंट एरर। क्या बताया था मैंने, ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट, आप मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास ये दो स्केल्स हैं, ठीक है, इफ यू मैच 0 ऑफ बोथ देन 15 सेंटीमीटर ऑफ बोथ मस्ट कोइंसाइड। अब मेरे पास इतना एक्यूरेटली आप मेरे सामने होते हैं फिजिकली तो मैं आपको खुद को बताता कि ऑब्जर्व इट, ठीक, पर अभी नहीं देख पाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि एक का 0 दूसरे के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन दूसरे का 15 एक के 14.9 और 15 के बीच में है, तो सर्टेनली दोनों की लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। ये यदि मिस्टर ए का स्केल है और ये मिस्टर बी का, तो हर कोई अपने हिसाब से उसको एक्यूरेट मानेगा, ठीक है, ए बोलेगा कि मेरा एक्यूरेट है, बी बोलेगा कि मेरा स्केल एक्यूरेट है, बट वी नो दैट बोथ ऑफ देम मे नॉट बी एक्यूरेट। इन दैट केस व्हाट वी मस्ट डू, वी मस्ट यूज अ स्टैंडर्ड स्केल। अब ये स्टैंडर्ड स्केल क्या होता है? जनरली इन ईच कंट्री देयर इज अ फिजिकल लैबोरेटरी where there is a definite pattern or definite scale is placed. That scale is made of platinum. There are two marks on it, 0 and 1. That distance between them always remains same with temperature or with atmospheric conditions. We keep atmospheric conditions same throughout. That particular length is defined as 1 meter. Whenever we want to make a scale, हमारी कंपनी है एंड हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं स्केल को, तो वी मस्ट अप्लाई करने के बाद में वो क्या बोलते हैं कि कीप अ बार विथ यू एंड मेक अ मार्किंग, 2 मार्किंग ऑन इट, 0 and 1, वो अपने सामने से स्टैंडर्डाइज कराते हैं, एंड देन गो बैक टू योर लैब एंड कन्वर्ट इट इनटू 2 πr। क्योंकि होता क्या है, एक रोलर होता है, उस रोलर के ऊपर मार्क लगे होते हैं, उसमें इंक लगती है, और वो रोलर चलते चले जाते हैं और उससे 0 से लेके 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से मार्किंग होती है। वो रोलर की लेंथ 2 πr होगी सर्कमफेरेंस, वो 2 πr को आपको कैलकुलेट करना होगा इक्वल टू 1 मीटर, एंड देन यू हैव टू डिवाइड। इट इज़ अ वेरी माइन्यूट वेरी माइक्रो थिंग विच यू हैव टू डू, और ये सिर्फ लैब में होती है या स्पेशल जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर रोलर इज मेड। वंस दैट रोलर इज मेड, नाउ यू कैन मार्क, यू कैन टेक अ स्ट्रिप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक शीट और उसके ऊपर स्लाइटली गर्म करके, जो उसके ऊपर इंक लगी रहती है, वो इंक स्लाइटली गर्म होती है, ज़्यादा गर्म नहीं तो पिघल के उसके ऊपर फैल जाएगी या फिर वो चिपक ही जाएगी उससे, ठीक है, और उसके ऊपर रोल करते चलते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से। ज़रा से भी ज़्यादा स्पीड हुई तो कुछ मार्क ही गायब हो जाएंगे, कम स्पीड हुई तो ज़्यादा मार्क पड़ जाएंगे या ज़्यादा मोटी हो जाएगी लाइन, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू मेक अ स्केल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केल्स जो होती हैं, स्टैंडर्ड कंपनीज जो होती है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए स्केल्स बनाती हैं, ठीक है, वो बहुत ध्यान रखती हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हम जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं या आप स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते हो, ज्योमेट्री में यूज़ करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एरर में आता है। कांस्टेंट एरर मीन्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ड्यू टू रॉन्ग वे ऑफ कैलिब्रेशन, ड्यू टू सम वियर एंड टियर इन द इंस्ट्रूमेंट, देयर आर चांसेस दैट द एरर मे अकर इन इट। दैट एरर इज डिफाइंड एज कांस्टेंट एरर। रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट यूज़ एक्यूरेट एंड करेक्ट स्टैंडर्ड स्केल्स, ठीक है। टाइम टू टाइम वी मस्ट चेक इट्स करेक्टनेस, ठीक है। करेक्टनेस चेक करने के लिए आपके पास मेथड्स होती हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो आप अभी नहीं पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन नाम का सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, वहाँ आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि कांस्टेंट एरर जो होती है उसको आप रिमूव करने के लिए टाइम टू टाइम चेंज ही कर दो स्केल, एक स्टैंडर्ड स्केल उसकी या यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट एरर। अब ये ज़ीरो एरर नाम की चीज़ भी होती है। ज़ीरो एरर कब होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊँ आपको कि मेरे पास एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज की जॉस को जब मैं मिलाता हूँ इस तरीके से घुमा के, तो दोनों के जीरो मिक्स होना चाहिए। आप यदि पास से देखेंगे, मैं दिखा सकता हूँ, पहले हो गया, आप थोड़ा समझो। मैं यदि थोड़ा पहले से खड़ा हूँ जीरो के पहले, और मैं सपोज़ जब दौड़ता हूँ, थोड़ा इसको इस तरीके से समझिए अपन, यहाँ जीरो था, ठीक, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मेजर करना, और मेरे को यहाँ जीरो से यहाँ 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, जबकि ऑलरेडी मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर पीछे था। तो एक्चुअली A to B लेंथ कितनी होगी भाई? आपने O से पढ़ा B तक, वो 10 है,
लेकिन आपको पढ़ना चाहिए था कहाँ से, ए से, क्योंकि आपने ए से स्टार्ट किया था, तो ए से बी तक की लेंथ 10 + 2 हो जाएगी, यानी 10 - 2 दैट इज़ 12। बस यही काम करते हैं, जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें से माइनस कर देते हैं लीस्ट काउंट को विथ हेयर साइन। ठीक है, यदि जीरो कुछ पहले है तो उसको माइनस साइन के लेंगे, और यदि जीरो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो आगे है तो उसको प्लस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, अपन कुछ दिनों बाद एक बार जब आप मेरे सामने फिजिकली होंगे तो विल डू दैट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उस समय आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो दैट व्हेन एवर वी टाइटन दैट पर्टिकुलर स्क्रू ऑफ स्क्रू गेज एंड मेक द जॉ टू टच ईच अदर, just touch each other. In that case, zeros of both the scales must coincide. If they do not coincide, that means there is zero error. इतना बताना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंस है दोनों जीरो के बीच के नंबर ऑफ इसके जो मार्क्स हैं उनको पढ़ेंगे। सपोज 4 मार्क्स आर देयर, देन 4 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ जीरो एरर। अब वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि उसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। इन दैट केस, इन दिस वे यू कैन रिड्यूस जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर सिर्फ किस में होगी, ओनली इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच कंटेन 2 स्केल्स, प्राइमरी स्केल एंड सेकेंडरी स्केल, और इन दिस केस प्राइमरी स्केल एंड सर्कुलर स्केल, एंड इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स प्राइमरी स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो अलग अलग नाम होते हैं उनके, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो आप करने जाएंगे तब सिर्फ यही होने वाले हैं, साल भर प्रैक्टिकल आपके 11th क्लास में। ठीक है, और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपन भी करेंगे इनको। तो ये क्या हो गया, जीरो एरर। अब इसके अंदर जाए एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। कल अपन ने डिस्कस किया था शायद सबसे आखिरी में, देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ परफेक्ट, देयर इज़ नथिंग विच इज़ परफेक्ट, देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स विच यूजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करेंट, वॉट एवर दैट लॉ इज़। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कैलोरीमीटर, इन कैलोरीमीटर व्हाट वी से दैट व्हेन ए हॉट बॉडी इज मिक्सड विद ए कोल्ड बॉडी, देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी till their temperature becomes equal. In that case, hot body gives heat to cold body and cold body accepts it. So amount of heat given by hot body must be equal to amount of heat accepted by cold body. ऐसे ही होना चाहिए, एक ने जितना दिया दूसरे ने उतना लिया ideally. But what happens, there are some losses of heat taking place to the surrounding atmosphere, and that's why the amount of heat received by cold body is not exactly equal to the amount of heat given by the hot body. So there will be error in calculation. Those errors which are due to some disobedience of law of conservation of energy or law of conservation of charges or law of conservation of mass, we call it error due to imperfection. There are many instruments which do it. For example, another example मैं दे रहा हूँ आपको, एक अमीटर है। अमीटर is used to measure current. ठीक है, आप करंट 1 एम्पियर फ्लो करोगे उसमें तो आपको 1 एम्पियर रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, बट वी ऑब्जर्व दैट अमीटर इटसेल्फ यूजेस सम ऑफ द एनर्जी टू मूव इट्स कॉइल एंड टू मूव इट्स पॉइंटर। तो सर्टेनली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो खुद यूज़ कर लिया उसने, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो पढ़ेगा इट विल बी स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो सच एरर्स आर डिफाइंड एज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसको रिमूव करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लॉसेस टेकिंग प्लेस इन दैट इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? यश, ध्रुव, दोनों ध्रुव समझ में आया? ठीक है, वेन एवर वी वॉन्ट टू रिड्यूस इट्स वैल्यू विल ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एरर, अमाउंट ऑफ लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यस सर, हो गया क्या? किसको किसको समझ में आ गया भाई? एक बहुत टिपिकल एरर है जो सब करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव ज़ीरो ऑब्जर्वर एरर। ठीक है, आप यदि खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 कॉज हो सकते हैं इस एरर के। नंबर 1, यू मे नॉट यूजिंग करेक्ट मैथड, यू आर यूजिंग रॉन्ग मैथड, और यू आर यूजिंग सम अनएक्यूरेट मैथड टू टेक द रीडिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ़ यू वांट टू टेक अ रीडिंग ऑफ अ स्केल देन यू मस्ट पुट योर आई एग्जैक्टली अबव इट, नॉर्मल टू इट। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी नो पैरेलैक्स बिटवीन द रीडिंग एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पर यदि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप देख रहे हैं तो आपको आगे का या पीछे का मार्क दिखेगा। इन दैट केस देयर इज एरर। नंबर 2, विथ टाइम एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जर्वर may reduce and that's why he is not able to take correct reading. Number 3, sometimes उसका जो डिसीजन है वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, 10.1 के ज़्यादा करीब रह रहा था लेकिन उसने 10.2 बोल दिया। These all are errors due to observer. ये होना ही होना है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? टू रिड्यूस इट्स वैल्यू वी डू नॉट यूज़ वन सिंगल ऑब्जर्वर।
आप देखते होगे 3 या 4 के ग्रुप में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। कोशिश कीजिए, टीचर्स तो बोलते हैं कि टेक योर रीडिंग्स इंडिविजुअली, हर कोई अपनी अपनी रीडिंग ले, ठीक है, और फिर उन रीडिंग्स का एवरेज लेकर के फाइनल रीडिंग बनाए। इन दैट केस यदि एक ने ज़्यादा पढ़ा है दूसरे ने कम पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। इन दिस वे यू कैन रिड्यूस एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया। दूसरा तरीका ये कि यू मस्ट नो द करेक्ट मैथड ऑफ टेकिंग दैट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हर चीज़ में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोपिक मीटर्स में, सब में एक पर्टिकुलर मैथड होती है, उसका यूज़ करना जरूरी होता है। देन द फोर्थ वन इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज मीन्स the atmospheric changes, for example temperature, humidity, air flow, air pressure, they all will change with time and they will affect the reading of the observation. For example, if you are using a pendulum clock, then in summer its length will increase, time period will increase because its time period t equals to 2 pi under root of L upon G. If length increases then it will increase its time period. टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब कल अपन ने डिस्कस किया था कि इट विल स्लो डाउन, एंड दैट्स वाई यदि मैंने ये भी बताया था कि 1% इंक्रीज होता है लेंथ में तो 434 सेकेंड से वो क्लॉक स्लो हो जाती है, और विंटर में 434 सेकेंड से ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। 432, 864 का आधा 432 सेकेंड से, इसका मतलब नियरली 7 मिनट्स एंड सम सेकेंड से, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज वैल्यू, और 1-2% का इंक्रीज़ होना बहुत यूजुअल है, नॉर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर्स में चेंज फ्रॉम 0 to 45, इन विंटर दे में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इन समर दे में भी 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई दिस इनएक्यूरेसी इज देयर। देयर आर मैनी स्केल्स विच आर मेड ऑफ मेटल, ऑल्दो nowadays we are using alloys whose value of linear coefficient of expansion is nearly 0, but still it is not 0, it is nearly 0. So there, whenever there is change in temperature, its length will change, and whatever we measure, it will have error in it. That is called error due to external cause. ये सारी error हो गई. They are all systematic errors whose exact cause is known to us, and there are methods to remove these errors. Reduce these errors. Remove नहीं बोल सकते, reduce these errors. अब इसके बाद आ जाए एक second error, second type of error जो main primary error थी, that is random error. अब ये रैंडम एरर का क्या मतलब है? रैंडम का मतलब है जिसका पहले से कोई नॉलेज ना हो, ऑर्डर ना हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम, ठीक है। जैसे आपके पास एक डब्बा है ढेर सारी, उसके अंदर गोलियां रखी हैं, ठीक है, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, और आपको बोला गया आँख बंद करके निकालो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडमली टेकन टेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आपको पहले से कोई पता नहीं होता है किस ऑर्डर में क्या चीज़ निकलने वाला है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम। तो यहाँ ये रैंडम एरर का क्या मतलब है वो समझें। आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास यदि ये स्केल है विच इज़ मेड ऑफ स्टील, देन ओनली एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज विल हैपन देयर? नो, देयर विल बी लीस्ट काउंट एरर इन इट, सर्टेनली देयर विल बी लीस्ट काउंट एरर इन इट बिकॉज इट हैज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक, नंबर 1। तो ये 2 एरर्स तो पक्का होने वाली है, और एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर तो हमेशा होती है, ठीक, तो वो भी होने वाली है। फिर 3 तो हो गई, इसके बाद कांस्टेंट एरर टाइम के साथ आने वाली है क्योंकि इसकी जो वेयर एंड टीयर होने जाने वाला है। तो आप ये बोल सकते हो इसमें सिर्फ एक एरर जो है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अदर देन दैट सारी एरर्स कुछ ना कुछ होंगी। कितनी कौन सी हैं यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, कि ये ज़्यादा है और वो कम है। सो व्हेन एग्जैक्ट कॉज, ऑल्दो वी नो दैट more than two systematic errors are occurring simultaneously, but we are not sure what percentage of error is there due to external cause or due to observer, then such errors are called random errors, ठीक है। तो कोई भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इन सब एरर्स का सम होगा, ठीक है, और वो सम जो होगा जब सम निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता होगा कि उसमें कौन सी एरर का कितना परसेंटेज है। then such errors are defined as random error. In each calculation there is random error, that is combination of systematic errors. तो उसको एक अलग नाम दे दिया अपन ने, that is random error. अब random error को reduce करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कभी भी आप observations लेते हैं तो एक single observation नहीं होता है, you take number of observations 4, 5, 6 like that. क्यों लेते हो आप इतने सारे observations? वो इसलिए लेते हो कि we should take more number of observations and then take its average value. When we take its average value, some of the values which you read may be larger than actual values, some of them may be less.
तो वो जब अपन ऐड करेंगे तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, एंड इन दैट वे द एवरेज वैल्यू इज सपोज टू बी एक्यूरेट वैल्यू। ध्यान रखेंगे, इसके बाद जब भी कैलकुलेशन होंगे तो जब एक्यूरेट वैल्यू की बात आएगी इट इज़ एवरेज ऑफ ऑल दोज ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज क्या लेंगे, जैसे x1, x2, x3, xn, ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं, तो इनकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल अपॉन n, दैट इज डिफाइंड बाय x बार। ये ऊपर जो लगा है इट इज कॉल्ड x बार, इट इज एवरेज ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस। इट इज सपोज दैट सम ऑफ देम may have positive error, some of them may have negative error and they will compensate each other. Positive negative cancel out कर देगा, तो it is supposed to be actual value, actual measured value। तो x bar is actual value। तो random error को reduce करने के लिए क्या करेंगे, we will take number of observations and then find its average value। That average value is supposed to be accurate value। हो गया। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट। ये सब अब जिसके बाद जो पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर है, मैथमेटिकल वे, कोई ऐसे कॉज नहीं होता उसका, वो तो सब हो गया यहाँ। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर में एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये पहली रीडिंग आपने जब ली x1 और आपने फाइंड आउट किया कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, x बार है, तो एब्सोल्यूट एरर कितनी जाएगी, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा x1 विल बी मॉड ऑफ x1 माइनस x बार। ठीक है, यानी आपने जो पहली मेजर्ड वैल्यू ली है उसका और जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली है उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा x2 इज इक्वल टू मॉड x2 माइनस x बार। थर्ड मेजरमेंट डेल्टा x3 इज इक्वल टू मॉड x3 माइनस x बार, डैश डैश डैश। इन दिस वे we will find out absolute error in each observation. Its average will give us average absolute error। तो average absolute error कितनी हो जाएगी, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डैश डेल्टा xn अपॉन n। This will be average absolute error। ठीक है, इट विल बी एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट ये कितना हो जाएगा, इट विल बी डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, आर वी कैन से रियल ट्रू वैल्यू। ठीक है, इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज डेल्टा x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x बार। इस तरीके से निकालते जाएंगे, उन सब का अपन क्या निकालेंगे, एवरेज, दैट विल गिव अस एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x। Now the ratio of this average absolute error to the true value or average value is defined as relative error। तो relative error क्या हो जाएगी, relative error is defined as ratio of delta x and x bar, that is it is the ratio of average absolute error and average value of the measurement, average absolute error and average value of the measurement, that is defined as relative error। परसेंटेज रिलेटिव एरर भी टेक ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी, दैट इज डेल्टा x अपॉन x बार इंटू 100, ये इंटू ऐसा लिखे। ध्यान रखें, रिलेटिव एरर को इस तरीके की डेल्टा x से शो करते हैं, ये डेल्टा है और वो भी डेल्टा है। ध्यान रखने, ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। ठीक है, ग्रीक रोमन लैंग्वेज के, मैं आप लोगों को इसकी पूरी शीट दे दूंगा जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा पूरे लेटर्स हैं, जैसे ABCD होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैं आज इसको भी डाल दूँ। अब ये बोलते ही आता हूँ, कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो आप मेरे को रिमाइंड करा दिया करो। ठीक है, कि सर आपने बोले थे और आप डाले नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहे उस पर, मैं तुरंत उसको डालूंगा। ठीक है, तो ये डेल्टा जो है ये जैसे ABCDEFGH आप कैपिटल में भी लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉल में भी लिखते हैं। सिमिलरली उन लेटर्स को भी ग्रीक लैंग्वेज में दो डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। एक मेथड जो होती है उसमें ये डेल्टा इस तरीके से लिखा जाता है और दूसरे में डेल्टा ऐसा लिखा जाता है। ये दोनों डेल्टा ही हैं, दे बोथ आर डेल्टाज। ठीक है, तो ये डेल्टा x से अपन रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेल्टा x जो है ये क्या हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इससे अपन रिलेटिव एरर निकाल लेंगे।
एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है? यश शर्मा। रिलेटिव, मैं इसका फोटोग्राफ भी लेता हूँ। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार, ठीक है। परसेंटेज रिलेटिव एरर इट इज डेल्टा एक्स, हाँ, एक्स बार इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ जो आपको शाइन हो रहा होगा तो यहाँ क्लियर कर दिया है। अब मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिससे कि इन एरर्स को क्या अपन क्लियर कर लें, ठीक है। दैट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अ बार इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल एंड द मेजर्ड वैल्यूज वेर फाउंड टू बी 4.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर्स एंड 4.3 सेंटीमीटर। ये 5 मेजर्ड वैल्यू मिली है। क्वेश्चन सेज दैट हाउ, ठीक है, ये डेल्टा एक्स, ठीक है, और दूसरा मैंने ये अपॉन एक्स बार, और ये सामने ये दूसरा डेल्टा बनाया है डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा है, ये जो बना हुआ है इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये फिजिकल डेल्टा होता है और ये मैथमेटिकल डेल्टा है, ये मैंने बनाया ऐसा बोलते नहीं है ना। मैथमेटिकल डेल्टा मीन्स डिफरेंस को शो करना होता है, स्मॉल डिफरेंसेस को तो स्मॉल डेल्टा से शो कर देते हैं। याद आया, मैंने किसी को बताया था, किसी ने पूछा था तब, ठीक है, कि डेल्टा जो बना हुआ है ये ट्रायंगल, ये जनरली मैथमेटिकली डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, ठीक है। और ये इसी को जब फिजिकली शो करना होता है तो हम स्मॉल डेल्टा ये वाला ही बनाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आप उनको साइन की तरह लें, ठीक है, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा साइन की तरह लोगे तो, ठीक है। तो दिस रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज कहाँ बनाया डेल्टा एक्स, ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू मेजर ट्रू वैल्यू, द रेशियो बिटवीन दैम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एग्जांपल दे रहा था जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एग्जांपल में क्या बताया मैंने कि लेंथ ऑफ ए बार इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड इट इज फाउंड दैट देयर वैल्यूज आर 4.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.1, 4.3 एंड 4.3, ठीक है। अब उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। पहले एक्स बार निकालने के लिए सबका सम लेंगे अपॉन 5, मैंने सॉल्व कर दिया है तो कितना मिल गया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए एक्स बार हो गया। अब आप हर मेजर्ड वैल्यू में से उस एब्सोल्यूट वैल्यू को या करेक्ट वैल्यू को घटाएंगे तो x1 माइनस एक्स बार मॉड इट विल बी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट कैलकुलेशन। तो कितना आएगा 4.2 माइनस 4.1, तो उसकी वैल्यू 0.1 हो जाएगी। मॉड लेना है तो आप साइन नहीं लेंगे, 4.2 माइनस 4.2 0 आ जाएगा, 4.2 माइनस 4.1 0.1 हो जाएगा, 4.2 माइनस 4.3 माइनस 0.1 होगा लेकिन मॉड वैल्यू उसकी 0.1 हो जाएगी, 4.2 माइनस 4.3 अगेन 0.1 हो जाएगा। इन सब का सम लेंगे और अपॉन में 5 कर देंगे तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर 0.08 आ रही है। अभी मैंने बताया नहीं है आपको कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, इसलिए सीधे 0.08 पर ही चले अपन। तो ये वैल्यू 0.08 आएगी। तो रिलेटिव एरर निकालनी है तो इट विल बी 0.08 अपॉन डेल्टा एक्स मीन्स 4.2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यदि इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल करेंगे, 0 यहाँ आएगा, 0 से 0 गया तो 80 अपॉन 42। तो सॉल्व करेंगे तो नियरली 2.95% ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 1.95%, ठीक है। ये आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इतनी छोटी मोटी अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ना जेई में ना नीट में कैलकुलेटर आउट है और ना ही 11th या 12th के एग्ज़ाम में। तो बेटर ये होगा कि आप इसको शॉर्टकट मेथड्स, कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके जल्दी सॉल्व कर लें। तो ये सारा अपन ने जो पढ़ा ये एरर कैलकुलेशन था, टाइप ऑफ एरर्स, हाउ टू कैलकुलेट दैम, हाउ टू रिड्यूस देयर वैल्यूज़ एट्सेट्रा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्लासरूम में 5-6 न्यूमेरिकल्स डाल रहा हूँ जिनमें आप इन एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा तो कल अपन पूरे करेंगे।